So today we are going to discuss thyroid gland. Thyroid gland. Thyroid gland is the largest endocrine gland. It is largest endocrine gland in our body, and it weighs about 30 grams. It weighs about 30 grams. It is largest endocrine gland and it is highly vascular. It is highly vascular gland, means it is richly supplied with blood vessels, and it is endodermal in origin. It is endodermal in origin. Thyroid gland is H shape. It is H shape or butterfly shape. It is H shape or butterfly shape gland, and it is bilobed, means it is made up of two lobes, left and right. So these are some general points of thyroid gland. Thyroid gland is the largest endocrine gland in our body. Its weight is 30 grams. It is highly vascular, means it is richly supplied with blood vessels, and it is endodermal in origin. It is H shape or it is butterfly shaped gland, and it is bilobed, means it is made up of two lobes. Now the position of thyroid gland. Position means where it is exactly located in our body. Actually, thyroid gland is located on the ventral side of neck. Ventral to neck. Ventral side of neck. It is present at the ventral side of neck. Ventral side of neck. नेक के वेंट्रल साइड में थायराइड ग्लैंड है. इसका डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो ये जो ऑर्गन है ये लैरिंग्स है, दैट इज ट्रकिया, सॉरी साउंड बॉक्स, क्या बोलती हूँ, लैरिंग्स. दिस इज लैरिंग्स. लैरिंग्स मीन्स साउंड बॉक्स और एडम्स एप्पल. And below the larynx thyroid is present. So this is thyroid. Below the larynx thyroid is present, so this is thyroid. This is thyroid gland. Okay, this is thyroid. This is larynx, sound box. This is thyroid. So I want to use blue pen to darken the gland. So this is thyroid. Okay, so thyroid is bilobe gland. It is made up of two lobes. This is left lobe of thyroid, and this is right lobe of thyroid, and this, it is H shape or it is butterfly shape. It is H shape or it is butterfly shape, and these two lobes are connected by this strip of connective tissue. This is called isthmus. So this is isthmus. Okay, this portion is called isthmus. It is made up of non-secretory cells. Isthmus is the part of tissue. It is a narrow strip
which connect right lobe of thyroid to the left lobe of thyroid, and isthmus is made up of non-secretory cells. Okay, isthmus, the strip of tissue which connect right lobe with left lobe, and this is trachea. Trachea is a part of respiratory system. It is also called windpipe. Trachea. This is trachea, which is continue from back side of thyroid. Means thyroid is present in front of trachea and below the larynx. So this is trachea. Trachea, and these are tracheal cartilage. These are tracheal cartilage. Some part of trachea is hide behind the thyroid. Some cartilage hide behind the thyroid. Any difficulty, beta? So this is trachea. So see, thyroid gland is present below the larynx. Any difficulty? Below the larynx, in front of trachea, in front of trachea, trachea के सामने, in the ventral side of neck. ये हो गई इसकी एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट लोकेशन. Thyroid is present below the larynx, in front of trachea, and in the ventral side of neck. It is made up of two lobes, means it is bilobe gland, and these two lobes are connected by isthmus. ये जो पोर्शन है ना बेटा यहाँ का, इसे isthmus बोलते हैं. इस पोर्शन, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन राइट लोब को लेफ्ट लोब के साथ कनेक्ट करता है. ये ट्रकिया जो थायराइड के पीछे से, थायराइड के पीछे है ट्रकिया का कुछ पार्ट. अब यहाँ थायराइड ख़त्म हो गई तो एक ट्रकिया एक्सपोज हो गया. एनी डिफिकल्टी बेटा? आगे चलें. अगर हम थायराइड का ट्रांसफ़र सेक्शन लेते हैं, टीएस ऑफ थायराइड, ये तो सिंपल है, हम इसको इंटैक्ट देख रहे हैं इस ग्लैंड को. टीएस ऑफ थायराइड, तो हमें टीएस ट्रांसफर सेक्शन ऑफ थायराइड, ट्रांसफर सेक्शन में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हिस्टोलॉजी. क्या पढ़ेंगे हम ट्रांसफर सेक्शन में? हिस्टोलॉजी मीन्स टिश्यू विच आर प्रेजेंट इन द थायराइड. थायराइड का टीएस अगर ले लेते हैं, ट्रांसफर सेक्शन ले लेते हैं, जैसे मान लो बेटा ये थायराइड है, दिस इज थायराइड ग्लैंड. इस थायराइड ग्लैंड को अगर हम ऐसे कट करते हैं इस तरह से, तो हमें सेक्शन कैसा मिलेगा? हमें, हाँ, इस तरह का सेक्शन मिलेगा हमें. ये नीचे का पार्ट और ये हो गया इसका ऊपर का पार्ट. ऐसे कट कर दिया ना मैंने, लेकिन हमें इसके दो पार्ट नहीं करने हैं, तो मैं इसको हम ऐसे कट करते जाएंगे. ऐसे ऐसे कट जब हम करेंगे तो हमें इसके ऐसे सेक्शंस मिलेंगे गोल गोल, मतलब गोल गोल नहीं मिलेंगे. अब इसको मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, तो इसको अगर हम कट करेंगे तो हमें ऐसे इस तरह के हमें सेक्शन मिलेंगे ना. लेकिन ये सेक्शन जो है वो बड़े थिनेस्ट होंगे, पतले होंगे. इसी को हम माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करेंगे. समझ में आया? तो ऐसे सेक्शन को क्या बोलेंगे हम? ट्रांसफ़र सेक्शन, टीएस, ट्रांसफ़र सेक्शन. जब हम टीएस ट्रांसफ़र सेक्शन जब हम देखते हैं थायराइड का अंडर लो पावर, पहले लो मैग्नीफिकेशन, मतलब 10x माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम यूज़ कर रहे हैं, 10x में हम देखेंगे पहले 10x. तो हमें इसका
जो भी स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से नज़र आएगा थायराइड का। ये थायराइड जो है इट इज़ कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल। दिस ग्लैंड इज़ कवर्ड बाय, मैं पूरा तो नहीं निकाल रही हूँ, इसका इतना ही पार्ट निकालेंगे हम। यहाँ पर जो होगा वही पूरे सेक्शन में हमें दिखाई देगा, तो पूरा सेक्शन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, सेम ही है ना पूरा। तो दिस इज कॉल्ड कैप्सूल। थायराइड ग्लैंड इज कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है ये थायराइड ग्लैंड को जिसने कवर किया है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो थायराइड ग्लैंड इज कवर्ड बाय कैप्सूल ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग जो है थायराइड ग्लैंड के ऊपर, दैट इज़ कॉल्ड कैप्सूल। क्या बोलेंगे उसे? कैप्सूल। देखिए ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये थायराइड के अंदर भी कंटिन्यू हुआ है, दिख रहा है? ये जो थायराइड के अंदर कंटिन्यू हो रहा है ये वही कनेक्टिव टिश्यू है जो थायराइड को एक्सटर्नली कवर कर रहा है। वही टिश्यू अंदर भी कंटिन्यू हो रहा है और अंदर ये पार्टीशन वॉल बनाया है इस टिश्यू ने। दिस इज कॉल्ड ट्रैबेक्यूली। ट्रैबेक्यूली या फिर हम पार्टीशन वॉल को सिंपली क्या बोलते हैं? सेप्टा। क्या बोलेंगे हम इसे? सेप्टा। सेप्टा। समझ में आया? तो जैसे आपने अनार देखा होगा अंदर से, तो अनार के अंदर हमें क्या दिखता है? तो छोटे छोटे पार्टीशन है, कंपार्टमेंट है, हर एक कंपार्टमेंट में सीड्स होते हैं, अनार के दाने होते हैं, है ना, लाल कलर के। बिल्कुल वैसा ही आप इमेजिन कर लीजिए, थायराइड के अंदर भी वैसा ही है। ये पार्टीशन वॉल है, ये पार्टीशन वॉल से इस तरह से थायराइड ग्लैंड को इस पार्टीशन ने अंदर से कुछ कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया। ये जो कंपार्टमेंट्स है दैट कंपार्टमेंट्स आर कॉल्ड लोक्यूल्स। क्या बोलेंगे इस कंपार्टमेंट्स को? लोक्यूल्स। इस कंपार्टमेंट्स को बोलेंगे हम लोक्यूल्स। लोक्यूल्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें लोक्यूल्स के अंदर दिखेगा, नज़र आएगा लोक्यूल्स के अंदर थायराइड फॉलिकल्स। थायराइड follicles which are structural and functional unit of thyroid gland. These are thyroid follicles. तो बेटा जब हमने थायराइड ग्लैंड का टीएस लिया, उस टीएस को हम जब लो मैग्नीफिकेशन में मतलब लो पावर में फोकस कर रहे सेक्शन को, 10x है ना, 10x का मैग्नीफिकेशन है, लेंस 10x का, आईपीस 10x का, मतलब 10 × 10 100 टाइम से मैग्नीफिकेशन हो गया। तो हमें देखिए, हमें थायराइड में कुछ पूरा नज़र आता है, लेकिन फॉलिकल के अंदर क्या है वो कुछ नज़र नहीं आता। तो देखिए, थायराइड ग्लैंड इज कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल। दैट कनेक्टिव टिश्यू सेंड पार्टीशंस इनसाइड द थायराइड ग्लैंड। दैट पार्टीशंस divide thyroid gland into small chambers, small compartments, and that compartments are called locules, and partition wall is called trabeculae or septa. That partition walls are called trabeculae or septa. In each locule thyroid follicles are present. So these are thyroid follicles. These are thyroid follicles. So thyroid gland is made up of thyroid follicles, and thyroid follicles are structural and functional units of thyroid gland. Any difficulty? Because thyroid gland is made up of thyroid follicle, and function of thyroid gland, that is secretion of thyroxine, is performed by thyroid follicles. So thyroid follicle is structural and functional unit of thyroid gland. Any difficulty? देखिए, थायराइड ग्लैंड इज कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल। इसी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पार्टीशंस बने हैं। इस पार्टीशन वॉल को ट्रैबेक्यूली या फिर सेप्टा बोलेंगे। इस पार्टीशन की वजह से ग्लैंड अंदर से छोटे छोटे कंपार्टमेंट में डिवाइड हुई है। उस कंपार्टमेंट को क्या बोलेंगे? लोक्यूल्स। हर एक कंपार्टमेंट में हमें क्या दिखेंगे?
तो थायराइड फॉलिकल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ थायराइड ग्लैंड है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड फॉलिकल से बनी है एंड थायराइड ग्लैंड फॉलिकल से तो बनी ही है। थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शन है वो भी कौन परफॉर्म करते हैं? थायराइड फॉलिकल। तो थायराइड फॉलिकल थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चरल यूनिट भी हो गए एंड फंक्शनल यूनिट भी हो गए। आगे चलेंगे। आगे हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का जो हमारा पावर है वो चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव को घुमा लेंगे हम। अभी मैंने लो पावर पे रखा था, अभी हाई पावर पर कर देती 45x, है ना। हमारे लेबोरेटरी में जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें 2 ही तो पावर दिखते हैं, रहते हैं उसमें, लेकिन जो प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट को उसमें 10x रहता है एंड 45x ज़्यादातर। तो हम हाई पावर मतलब 45x में हम इस सेक्शन को जब देखेंगे हाई पावर में, तो हमें अब हम एक फॉलिकल को फोकस करेंगे, क्योंकि हमें फॉलिकल को देखना है। देखिए मैंने एक फॉलिकल को इस तरह से ये भी टीयर्स ऑफ थायराइड है, जिसमें हमें फॉलिकल्स क्लियरली दिख रही। समझ में आया? देखिए ये है थायराइड फॉलिकल, तो मैं इसको एक लेबल दे देती हूँ। चलो, दिस इज थायराइड फॉलिकल्स, दीज आर थायराइड फॉलिकल्स। तो अभी मुझे यहाँ ऐसा एरो दिखाना पड़ेगा। थायराइड फॉलिकल इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। थायराइड फॉलिकल इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये कौन सा एपिथेलियम है? इट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। समझ में आया आपको? कौन सा एपिथेलियम है? इट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो दिस इज इंटरनली ईच थायराइड फॉलिकल इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसको फास्ट अगर ड्रॉ करना है ऐसे कर देंगे, अभी ऐसे करेंगे, ऐसे कर देती हूँ, फास्ट हो जाएगा काम अपना, है ना। चलिए, दिस इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इस वॉल को थोड़ा, तो हर एक थायराइड फॉलिकल जो है इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये हो गया सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसके सेल्स जो है क्यूब जैसे है ना, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम? सिंपल क्यों बोलेंगे? क्योंकि सिंगल लेयर है इसलिए सिंपल। इसके सेल्स कैसे? क्यूब शेप है, क्यूब जैसे है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम? क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, बिकॉज इट इज रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। epithelial tissue or epithelium tissue is always resting on basement membrane. थायराइड फॉलिकल हो गया ये, थायराइड फॉलिकल। समझ में आया? यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, अब ऐसा ड्रॉ कर लेती हूँ इसको। ये हो गया क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सेल्स कैसे हैं इसके? क्यूब जैसे, क्यूब शेप, इसलिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सेल्स के अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस। ये हो गया थायराइड फॉलिकल कंप्लीट। तो थायराइड फॉलिकल इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। हर एक फॉलिकल, ये हमें आधी ही नज़र आ रही, तो आधी है क्या? ये पूरी है ना, कंप्लीट है, लेकिन हमारे फोकस में इसका आधा ही पार्ट आ रहा है, इसलिए मैंने इसको आधा ही ड्रॉ किया। इसका मतलब यहाँ बहुत सारे फॉलिकल्स इसके आजू बाजू में है। थायराइड फॉलिकल हो गया। इस फॉलिकल का जो ये एपिथेलियम है, ये जो एपिथेलियम है इसे मैं नाम दे देती हूँ फॉलिकुलर एपिथेलियम। क्या नाम दिया मैंने इसको? फॉलिकुलर एपिथेलियम। लेकिन ये फॉलिकल को लाइंड कर रहा है इसलिए फॉलिकुलर एपिथेलियम। बेटा ये कौन सा एपिथेलियम है? इट इज सिंपल क्यूबॉइडल, it is simple cuboidal epithelium and it is resting on, yes, this is basement membrane. This is basement membrane. Okay,
ये फॉलिकल के बीच में एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, जिस टिश्यू के कारण ये जो फॉलिकल्स है, दिस फॉलिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब ये जो टिश्यू है फॉलिकल के बीच में, दैट इज इंटर फॉलिकुलर टिश्यू, दैट इज इंटर फॉलिकुलर टिश्यू। क्या नाम है इसका? इंटर फॉलिकुलर टिश्यू। इस इंटर फॉलिकुलर टिश्यू में हमें कुछ सेल्स दिखेंगे ऐसे स्कैटर्ड, लेकिन ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स। समझ में आया आपको? तो ये जो सेल्स है जो हमें इंटर फॉलिकुलर टिश्यू में नज़र आ रहे, दिस सेल्स आर कॉल्ड फॉलिकुलर, पैराफॉलिकुलर सेल्स। पैरा मतलब फॉलिकल के बाहर है ना, फॉलिकल के अंदर होते तो फॉलिकुलर सेल, फॉलिकल के बाहर है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे बेटा हम? दिस सेल्स आर कॉल्ड पैराफॉलिकुलर सेल्स। क्या बोलते हैं हम इसे? पैराफॉलिकुलर सेल्स, पैराफॉलिकुलर सेल्स। एनी डिफिकल्टी? पैराफॉलिकुलर सेल्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो ग्लैंड है इट इज़ हाईली वेस्कुलर, तो हमें इसे यहाँ पर ब्लड वेसल भी नज़र आएंगी। क्या है ये? ब्लड वेसल है ना, ब्लड कैपिलरी। समझ में आया? तो ये हो गया इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। कुछ बातें अभी बाकी हैं, बता देती हूँ आपको। फॉलिकल के अंदर अगर हम देखते हैं तो फॉलिकल के अंदर हमें एक प्रोटीनेशियस मटेरियल मिलेगा। समझ में आया ना? ये हमें जो प्रोटीनेशियस, ये पूरी फॉलिकल ऐसी भरी पड़ी है, इसके अंदर एक मटेरियल है जिसे बोलते हैं कोलाइट। क्या बोलेंगे बेटा इस मटेरियल को? कोलाइट। इसके अंदर ये मटेरियल है सॉलिड, सॉरी, ये जो मटेरियल है दैट मटेरियल इज कोलाइट, दिस इज कोलाइट। इसमें आधा ही ड्रॉ करेंगे। एक्चुअली कोलाइड को बोलते हैं आइडोथायरोग्लोब्युलिन। इसे लेबल दे देते हैं, दिस इज कोलाइड। सो दिस इज TS ऑफ थायराइड, TS ऑफ थायराइड। Thyroid follicle, it is a roughly spherical in shape. It is lined by simple cuboidal epithelium resting on basement membrane. Between the follicles, interfollicular tissue is present. That interfollicular tissue holds that thyroid follicles. Okay. In that tissue, some cells are found, and that cells are called parafollicular cells because that cells are not inside the follicle, that cells are outside the follicle, and hence parafollicular cells or C cells. Parafollicular cells or C cells. That cells are called parafollicular cells or C cells because that cells secrete a hormone calcitonin. We will discuss these functions of cells later. So now we are discussing structure of thyroid gland. So this is parafollicular. These are parafollicular cell. This is interfollicular tissue, and these are blood vessels. And follicles are filled with proteinaceous material, and that proteinaceous material is called colloid. Okay. Now hormones of thyroid. हार्मोन्स ऑफ थायराइड। थायराइड ग्लैंड में जो हार्मोन, थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है दैट इज थायरोक्सिन। हार्मोन्स ऑफ थायराइड। थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन सिक्रेट करती है,
एक है थायरोक्सिन, दूसरा हार्मोन है कैल्सिटोनिन। आपको अगर पूछा जाए क्वेश्चन एनलिस्ट द हार्मोन्स ऑफ थायराइड, तो आपको लिखना है थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। अगर आपको ये पूछा जाए कि गिव द ओरिजिन ऑफ दिस हार्मोन्स, तो आपको क्या लिखना है? थायरोक्सिन इज सिक्रेटेड बाय फॉलिकल, थायराइड फॉलिकल। थायरोक्सिन इज सिक्रेटेड बाय थायराइड follicle, and calcitonin secreted by parafollicular cells, parafollicular cells or C cells, parafollicular cells or C cells. थायरोक्सिन हार्मोन सिंथेसिस, थायरोक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस ये एक्चुअली है क्या? थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन क्या है? इट इज आयोडिनेटेड डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड टायरोसिन। Thyroxine is iodinated derivative of amino acid टायरोसिन। टायरोसिन नाम का जो अमीनो एसिड है, देयर आर 20 अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन आवर सेल साइटोप्लाज्म। सो आउट ऑफ दिस 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स, टायरोसिन इज द अमीनो एसिड विच इज रिक्वायर्ड फॉर synthesis of thyroxine hormone. So synthesis of thyroxine hormone takes place in the follicles, So if this is thyroid follicle, this is thyroid follicle and these are follicular cells, cuboidal epithelial cells. We get iodine from food, iodinated salt from water and from seafood. So iodine is essential for the synthesis of thyroxine hormone. This is thyroid follicle, okay, and this is follicular cell. This is follicular cell, okay. So thyroid gland is richly supplied with blood vessel. So if this is a blood vessel, this is blood vessel, inside blood vessel blood is flowing, and if this is capillary, this is capillary because exchange of material takes place through the capillary wall. So blood contain iodine, blood contain iodine, blood contain iodine. This follicular cell capture iodine from blood. Follicular cell capture iodine from blood by a special mechanism that is called chemical pump or iodine pump. So follicular cells capture iodine from blood. Follicular cell capture iodine from blood by a special mechanism, and that mechanism is called iodine pump or chemical pump. Then that iodine combine with tyrosine. Iodine combine with tyrosine in presence of enzyme.
in presence of enzyme and form thyroxine hormone. So how thyroxine hormone is formed? Follicular cells capture iodine from blood by a special mechanism. That mechanism is called chemical pump or iodine pump. Then in the thyroid follicle, that iodine is combined with tyrosine. Tyrosine is amino acid. In presence of enzyme and iodine plus tyrosine, thyroxine is formed. In this way, thyroxine hormone is formed. Actually, thyroxine hormone is of two types, T1, T3 and T4. Thyroxine hormone is of two types, T3, that is triiodothyronine, and T4, tetraiodothyronine. T3 triiodothyronine and T4 tetraiodothyronine. These are thyroid hormones. Two types of thyroid hormones are there. T3 means in this T3 hormone, triiodothyronine hormone, there is three iodine atoms. How many? Three iodine atoms. In the T4, in this molecule, 4 iodine atoms are present. Okay, atoms per molecule of thyroxine. थायरोक्सिन के एक मॉलिक्यूल में अगर आयोडीन के 3 एटम्स है तो वो हो गया ट्राईआयोडोथायरोनाइन। थायरोक्सिन के एक मॉलिक्यूल में अगर आयोडीन के 4 एटम्स है तो वो हो गया टेट्राआयोडोथायरोनाइन। ये T3 हार्मोन है ना, ये लेस अमाउंट में होता है, कम, लेकिन ये मोर एक्टिव है, मोर पोटेंट है। ऐसा क्यों है? T4 मोर अमाउंट में, T3 लेस अमाउंट में। ऐसा क्यों होता है? T3 लेस अमाउंट में फिर भी T3 मोर एक्टिव एंड मोर पोटेंट। इट इज़ एक्टिव देन T4 एंड इट इज़ पोटेंट देन T4। ज़्यादा प्रभावशाली है, ज़्यादा एक्टिव है T3 सॉरी। ऐसा इसलिए है कि ये जो T4 है ना, ये जो T4 है, T4 माइनस आयोडीन इज इक्वल टू T3। ये होता है लीवर में। ज़्यादातर जो T4 आयोडीन, T4 हार्मोन है ना, T4 हार्मोन से एक आयोडीन एटम रिमूव होता है। T4 ये जो थायरोक्सिन है T4 से एक आयोडीन एटम रिमूव होता है तो उससे क्या बनता है? T3। तो T4 से T3 बनता है, इसलिए T3 लेस क्वांटिटी में, क्योंकि T4 का कन्वर्शन किस में हो जाता है? T3 में। कहाँ हो जाता है ये कन्वर्शन? लीवर में होता है। मोनोआयोडोथायरोनाइन एंड डाईआयोडोथायरोनाइन भी रहते हैं। मोनोआयोडोथायरोनाइन एंड डाईआयोडोथायरोनाइन। मोनोआयोडोथायरोनाइन में क्या होगा बताइए मुझे। मोनो समझ में आया आपको? मोनोआयोडोथायरोनाइन मतलब वन सिंगल आयोडीन, एक आयोडीन एटम है इसमें। डाईआयोडोथायरोनाइन में, डाईआयोडोथायरोनाइन में कितने आयोडीन के एटम्स होंगे? 2 आयोडीन एटम्स। समझ में आया? तो
तो ये मोनोआयोडोथायरोनाइन एंड डाईआयोडोथायरोनाइन से ही T3 एंड T4 बनते हैं। आया समझ में आपको? मोनोआयोडोथायरोनाइन एंड डाईआयोडोथायरोनाइन से ही T3 एंड T4 बनेंगे। जब ये T3 एंड T4 बनेंगे तो जो थायराइड के अंदर फॉलिकल के अंदर है ना, ये फॉलिकल है, फॉलिकल के अंदर जो कोलाइड है, ये कोलाइड है फॉलिकल के अंदर, इसका फंक्शन क्या है कोलाइड का? इसका फंक्शन है स्टोरेज ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। स्टोरेज ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, जो ये कोलाइड है, कोलाइड क्या करता है, इसका काम क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन को स्टोर करना। ये एक ऐसी हमारे बॉडी में ग्लैंड है जो अपने हार्मोन को स्टोर करती है। समझ में आया ना? तो ये जो कोलाइड है, कोलाइड किससे बना है? ऐसे बोलते आयोडोथायरोग्लोब्यूलिन, क्या बोलते हैं इसको? आयोडोथायरोग्लोब्यूलिन, या फिर हम इसे थायरोग्लोब्यूलिन भी बोल सकते हैं। आयोडो इसलिए बोलते हैं क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन यहाँ है, थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन है, इसीलिए इसे आयोडोथायरोग्लोब्यूलिन। इससे ये किससे बना है? ये बनता है थायरोक्सिन प्लस ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन क्या होगा? प्रोटीन। ये कॉम्प्लेक्स है ना? ये जो कोलाइड है आयोडोथायरोग्लोब्यूलिन, जिसे हम बोलते हैं, किससे बनता है? ये थायरोक्सिन हार्मोन एंड ग्लोब्यूलिन। तो थायरोक्सिन हार्मोन इज स्टोर्ड इन द thyroxine hormone is stored in the colloid in the form of iodothyroglobulin before its release. हार्मोन रिलीज होने के पहले, हार्मोन के सिंथेसिस के बाद हार्मोन इस कोलाइड में स्टोर रहते हैं। किस फॉर्म में स्टोर रहेंगे कोलाइड में? इन द फॉर्म ऑफ आयोडोथायरोग्लोब्यूलिन। एनी डिफिकल्टी?